Hello, good afternoon, student. My name is Hiral Raval, Standard 10th, subject Science. Okay, student. Today we have learned chapter number 9, Heredity and Evolutions. Okay, student. Suppose पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब हमारी कोई ऐसी जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पेरेंट्स से हमको मिलती है, ऑफस्प्रिंग में ऑब्वियसली आ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड अ हेरिडिटी. We have seen that reproductive processes give rise to new individuals that are similar but subtly different. We have discussed how some amount of variation is produced even during a sexual reproductions, and the number of successful variations are maximized by the process of sexual reproduction. If we observe a field of sugarcane, we find very little variations among the individual plants. Okay, but in a number of animals, including human beings, which reproduce sexually, quite distinct variations are visible among different individuals. In this chapter, we shall be studying the mechanism by which variations are created and inherited. Okay, ये चैप्टर में हम ये सीखेंगे. The long term consequences of the accumulations of variations are also an interesting point to be considered. We shall be studying this under evolutions. ओके, ये चैप्टर में हमें इवोल्यूशन और हेरिडिटी दोनों के बारे में हमें पढ़ना है. ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक 9.1 एक्यूमुलेशंस ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शंस. ओके, क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, क्या क्या एक्यूमुलेशंस होते हैं. Inheritance from the previous generation provides both a common basic body design. दोनों की जो बॉडी डिज़ाइन है वो क्या है, कॉमन है, मीन्स के सेम है. एंड subtle changes in it for the next generation. Now think about what would happen when these new generations in its turn reproduces. क्या उसमें चेंज होता है. The second generation will have differences that they inherit from the first generation. जो सेकेंड जनरेशन है वो फर्स्ट जनरेशन जैसी ही होती है. एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस, वरना उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो हो जाते हैं. फिगर 9.1 would represent the situations if a single individual reproduces, as happens in asexual reproductions. If वन बैक्टीरियम डिवाइड्स, है ना, एक बैक्टीरिया को हम डिवाइड कर देते हैं, एंड द रिजल्टेंट टू बैक्टीरिया डिवाइड अगेन, और अगेन जो रिजल्टेंट जो बैक्टीरिया मिले उसको भी हमें डिवाइड करना है. देखो आप डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये फर्स्ट है, उसमें से एक रेड जो देखो और एक ब्लू वाला देखो. रेड में से अगेन दो हो गए और ये ब्लू जो है उसमें अगेन ब्लू हो गए. बट देखो उसमें फीचर्स अलग अलग है, हमने कलर से पता है. एक बाजू जो ब्लू है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है वो ब्लू है और यहाँ पे ये पिंक है ना. थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ. तो यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला था ये सेम टू सेम वैसा के वैसे रहा, है ना, बट इसमें चेंज हो गए. तो ऐसे चेंज थोड़े बहुत होते रहते हैं, फीचर्स चेंज होते रहते हैं. एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस. Figure 9.1 would represent the situations of a single individual reproduces, as happens in asexual reproductions. If one bacterium divides and then the resultant two bacteria divide, again the four individuals bacteria generated would be very similar. There would be only very minor differences between them, generated due to small इनएक्यूरेसीज, है ना, थोड़ा बहुत इसमें चेंज आ जाता है. इन डीएनए कॉपिंग,
डीएनए कॉपी में चेंज रहता है. However, if sexual reproduction is involved, even greater diversity will be generated, as we will see when we discuss the rules of inheritance. हमें इनहेरिटेंस का रूल्स अप्लाई करना है. डू ऑल दिस वेरिएशन इन अ स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस of surviving in the environment in which they find themselves? Obviously not. Depending on the nature of variations, different individuals would have different kinds of advantages. ओके, डिफरेंट जो डीएनए से चेंज होता रहता है तो उसमें वेरिएशन होता रहता है. हर एक जो बैक्टीरिया है उसकी साइज़ में, शेप में, कलर में थोड़ा बहुत हमें चेंज देखने को मिलेगा. बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव. एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स forms the basis of evolutionary processes, as we will discuss in later sections. Okay, यहाँ पे questions दिए. This is inbuilt questions. If a trait exists in 10% of a population of an asexually reproducing species, and a trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier? ये फर्स्ट वाला है. और सेकेंड है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल. क्या चेंजेस होते हैं. ओके, द 9.2 टॉपिक है हेरिडिटी. हेरिडिटी में हम देखेंगे द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस still remains the generations of individuals of similar designs. The rules of heredity determine the process by which traits and characteristics are reliably inherited. Let us take a closer look at these rules. Okay, उसमें क्या होना चाहिए, ट्रेड्स और वो सब उसमें जो ट्रेड्स है वो हेरिडिटी में डिटरमिन करता है ना. तो उसमें रिलेबल इनहेरिटेड थोड़ा चेंजेस हो जाता है. तो सबसे पहले हम इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में देखेंगे. व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है. वी नो दैट अ चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, है ना. चाइल्ड्स का जो बियर्स होता है वो कॉमन फीचर्स है ह्यूमन बीइंग में. हाउएवर इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स एंड ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन, है ना. कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखने लगे तो हमारे लिए तो बहुत सारी जो है एक ग्रेट डील हो गई, है ना. सपोज एक फादर है, उसका बच्चा सेम टू सेम उसकी कॉपी लगेगा, फिर उसका बच्चा उसकी कॉपी लगेगा, है ना. तो उसमें तो क्या हो जाएगा, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. इसके लिए हम सब में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता रहता है ना. इसीलिए हम सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो विदाउट चेंज हम किसी को पहचान ही नहीं पाएंगे, है ना. तो गॉड ने तो ये अच्छा रखा है, भगवान ने ये अच्छा रखा है कि सबके फेस है वो अलग अलग है, वरना कोई किसी को नहीं पहचान सकता है. ट्विंस, आपने ट्विंस बेबी देखे हो तो आपको पता चलता है कि भाई उसके घर वाले धीरे धीरे पहचान जाते हैं, पर बाहर का जो उसको तो प्रॉब्लम होता है ना ट्विंस में. यहाँ पे 9.1 दिया है, एक्टिविटी दी है. ऑब्जर्व द ईयर्स ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर इन द क्लास. क्लास में सबके ईयर्स आप खाली ऑब्जर्व करो. प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग फ्री और अटैच ईयर लॉब्स. ईयर लॉब्स किसी की फ्री होती है, किसी की अटैच होती है. देखो हम डायग्राम में बताती हूँ मैं आपको. दिस इज़ द ईयर लॉब. आप देखो यहाँ से ये जो है वो फ्री है ना. और आप यहाँ पे देखो ये जो है वो अटैच है यहाँ पे. ओके स्टूडेंट, देखा आपने कितना डिफरेंस है.
किसी का अटैच होता है, किसी का ऐसे डी होता है। सो हमें क्या करना है, ऑब्जर्व द ईयर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। हमें ऑब्जर्व करना है क्लास में। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट का हमें लिस्ट बनाना है। हैविंग फ्री और अटैच ईयर लॉब्स, एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैविंग ईच फाइंड आउट अबाउट द ईयर लॉब्स of the parents of each student in the class. Correlate the year log type of each students with that their parents, और उसके पेरेंट्स के साथ हमें कंपेयर करना है। बेस्ड ऑन दिस एविडेंस सजेस्ट अ पॉसिबल रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द ईयर लॉब टाइप्स, और हमें उसका जो ईयर लॉब है वो हमें चेंज करके देखना है। रूल्स ऑफ the rules of inheritance of such traits in the in the human beings are related to the fact that both the father and the mother contribute practically equal amounts of genetic material to the child. ओके, दोनों में चेंज होता है। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटर्नल, है ना। पैटर्नल भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं, और मैटर्नल जो मामा के घर होता है ना, उसके भी बहुत सारे फीचर्स बच्चे में आ जाते हैं। मीन्स के चाचा के भी फीचर्स आते हैं और मामा के भी फीचर्स आते हैं। Thus for each trait there will be two वर्जन्स इन ईच चाइल्ड। ओके, दोनों वर्जन्स, दोनों चाइल्ड में जो है वो वेरिएशंस है। व्हाट विल देन द ट्रेट सीन इन द चाइल्ड बी, क्या चेंज आता है। मैंडल सी बॉक्स वर्कड आउट द मेन रूल्स ऑफ सच इनहेरिटेंस, एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लुक एट सम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट फ्रॉम मोर देन अ सेंचुरी अगो। मैंडल ने ऐसे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिससे उसको पता चला कि क्या क्या चेंज आ रहे हैं। ओके, हम डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम जो ए है उसमें फ्री एंड है, और जो डायग्राम बी है उसमें अटैच ईयर लॉब्स है। द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर कॉल्ड द ईयर लोब। ईयर लोब की डेफिनेशन भी आ गई। द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड द ईयर लोब। Is closely attached to the side of the head in some of us and not in others. Free and attached ear lobes are true variations found in human population. Human populations में ऐसे फीचर्स होते हैं, किसी के ईयर लॉब्स जॉइंट होते हैं, किसी के ईयर लॉब्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं। ओके, देन यहाँ पे एक साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन दी है। ग्रेगोर जॉन मेंडल 1822 to 1884। Mendel was educated in a monastery and went on to study science and mathematics at the University of Vienna. Failure in the examinations for a teaching certificate did not suppress his zeal for scientific quest. He went back to his monastery and started growing peas. उन्होंने पीस उगाना चालू किया, मटर का क्रॉप प्रोडक्शन कर दिया। Many others had studied the inheritance of traits in peas and other organisms earlier, और उसने अलग अलग ट्रेस देखना चालू किया। But Mendel blended his knowledge of science and mathematics and was the first one to keep count of individual exhibiting a particular trait in each generation. A particular trait. To keep count of individual exhibiting particular trait in each generation. This helped him
to arrive at the loss of inheritance that we have discussed in the main text. तो यहाँ पे जो है उसका हमें बताया गया है. ओके, टॉल और शॉर्ट जो है वो ट्रीज है. हम पूरा देखते हैं ध्यान से. Mendel used a number of contrasting visible characters of garden, peas, round, wrinkled seeds, tall and short plants, white violet flowers and so on. उसने बहुत सारे फीचर्स अलग अलग किए. He took pea plants with different characteristics. उसने pea plant लिया, a tall plant and a short plant. एक tall लिया और एक short लिया. Produced the progeny from them and calculated the percentage of tall or short progeny. और उसने देखा कि क्या डिफरेंस हो रहा है. टॉल और शॉर्ट को उसने एक साथ प्रोजेंसी किया. ये डायग्राम में हम देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट, दिस इज द डायग्राम ऑफ टॉल एंड शॉर्ट ट्रीज प्लांट्स. तो उसने क्या किया, टॉल एंड शॉर्ट को साथ में रखा. ओके, और टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट प्रोड्यूस progeny from them and calculated the percentage of tall and short progeny. In the first place, there were no halfway characteristics in these first generations or F1 progeny. No medium height plants. All plants were tall. सारे plants tall थे. This means that only one of the parental traits was seen, not some mixtures of the two. So the next question was, were the tall plants in the F1 generation exactly the same as the tall plants of the parent generation? क्या उनमें हमें चेंज दिखाई दिया? Mendelian experiments test this by getting both the parental plant and these F1 tall plants to reproduce by self-pollination. अपने आप ही वो होने लगे. The progeny of the parental plants are of course all tall. सारे tall हो गए. देखो आप देख सकते हो. ओके, सारे प्लांट टॉल हुए. ऑल टॉल ऑफ स्प्रिंग्स. टॉल और शॉर्ट को उन्होंने एक साथ किया तो सारे प्लांट्स टॉल हुए. ओके, दिस इज कॉल्ड F1. तो सेल्फ पॉलिनेशन किया. द प्रोगेनी ऑफ द पेरेंटल प्लांट्स आर ऑफ कोर्स ऑल टॉल. However, the second generation or F2 progenies of the F1 tall plants are not all tall. सारे tall नहीं हुए. Instead, 1/4 of them are short. एक उसमें 1/4, 4 में से एक short निकला. This indicates that both the tallness and shortness traits were inherited in the F1 plants, but only the tallness trait was expressed. Thus, 2 copies of the traits are inherited in each sexually reproducing organisms. These two may be identical or may be different depending on the percentage. वो percentage पे डिपेंड करता है ना, कितने टॉल हुए कितने शॉर्ट हुए वो हमें उससे पता चलता है. A pattern of inheritance can be worked out which these exemptions are shown in figure 9.3. देखो क्या किया उन्होंने. सबसे पहले फर्स्ट का ही देखा. मीन्स के दोनों टॉल प्लांट उन्होंने लिए. ओके, मीन्स के एक टॉल लिया और एक शॉर्ट लिया तो सारे प्लांट कैसे हुए, टॉल हुए. ओके, फिर उन्होंने सेकंड जनरेशन को ये दो जो प्लांट है ना, ये दोनों प्लांट लिए उन्होंने. ओके, वो दो प्लांट का प्रोगेनी किया तो एक जो प्लांट है वो कैसा मिला, उनमें से हमें शॉर्ट मिला. ओके, तो ऐसा हुआ कि जो F1 जनरेशन्स जो है ना, ये वाला F1 इंटू F1 किया तो ये सेकंड जनरेशन हुई और ये थर्ड जनरेशन हुई. मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट जो जनरेशन्स है उसके फीचर्स है थोड़े बहुत थर्ड जनरेशन में आ सकते हैं. ये प्लांट्स की बात हुई है ना. हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं है ना, जो दादा दादी होते हैं उसके फीचर्स उसके पोते में आ सकते हैं है ना. मीन्स के जो दादा दादी होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनके बच्चे में उनके फीचर्स जो ग्रैंड पेरेंट्स के फीचर्स है वो आ सकते हैं. इससे यही प्रूव होता है. ओके, तो सपोज ऐसा हो सकता है कि जो आप जो हो
आपका फेस है, आपका जो स्टाइल है, आपका जो लुक्स है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मैच हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो मेंडल ने ये जो है कॉपीज से ट्रेड की जो कॉपीज थी, टॉल एंड शॉर्ट पीस जो प्लांट थे, उससे उन्होंने ये प्रूव किया। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।